आरोपी सरफराज, जिसको मुठभेड़ में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। मोहम्मद सरफराज alias रिंकू, अब्दुल हमीद and Mohammad Afzal, Farheen and Mohammad Talim. The information that I have is that two of them have received minor injuries during shootout with the police. They have been rushed to the local hospital. A total of 5, the ones that I have named, have been arrested. Okay. So, and they are the ones who are wanted in the murder that led to this communal conflagration. Okay, sir, if you could also, Mr. Yash, if you could also confirm to us how many of these accused were there on spot, because this is a developing story. What happened in the operation? What was the information that the teams on the ground got that led to this kind of an operation near the Nepal border? I don't have the details with me because I haven't yet spoken to the officers concerned. Let me first get to them, and once I have confirmed the entire chain of events, I'll be able to clarify. Mr. Yash, just one more question. How many of the accused were trying to flee? If you could just confirm that for us once again. It seems that they have all been caught together. Okay. So they might have been trying to escape across the border. And how many of them? We are talking about 3 to 4 or 2 to 3? The information that I have is that 5 of them have been arrested. Okay, so 5 of them. That's a big that's a big breaking news update that you're giving us, sir. 5 accused who were trying to flee. They were apprehended by the teams on the ground, by the police teams on the ground, and that is when this encounter took place. Any information that you have on why the encounter took place, when they were asked to surrender? Because source-based information that we've gathered so far is that they were asked to surrender and then they opened fire. What exactly happened? If you could give us some details on the chain of events. See, I don't have the details myself because I am yet to speak to the officers concerned. Once I have a word with them, I'll be able to give you the details. Okay. Mr. Yashan, before I let you go, you have more information about the investigation, a lot of details, and meticulously the teams of the STF are also working on the ground. Do you suspect a larger conspiracy behind what happened in Bahraich? The investigations are still on. I would not be able to comment on that. Okay. Thank you so much, Mr. Yash, for joining us. So, big breaking news. उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को आप सुन रहे थे। वो जानकारी दे रहे हैं कि 5 लोगों को पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सरफराज के साथ साथ 4 और लोगों को पकड़ा गया है। सरफराज को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यानी कि जो 6 नामजद आरोपी थे, उनमें से 5 आरोपियों को पकड़ने की जानकारी आ रही है। हालांकि अमिताभ यश कह रहे हैं कि अभी वो इस बारे में और भी जानकारी जुटाकर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन नेपाल भागने की कोशिश के दौरान, और इस वक्त हमारे साथ बहराइच के सीओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या जानकारी है, कितने लोगों को पकड़ा गया है और एनकाउंटर में कितने घायल हुए हैं? हेलो जी सर, हमें रवि खोकर जी, अभी जो एनकाउंटर की जानकारी मिली है उसमें कितने आरोपियों को पकड़ा गया है, कितने लोगों को गोली लगी है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? 2 हमारे अभियुक्त थे जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनको तत्काल जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और जहां पर इनका उपचार चल रहा है। बाकी जो 2 व्यक्ति हैं वो भी हमारी हिरासत में हैं और सभी वैधानिक कार्यवाही करी जा रही है। जी रवि जी, आप एनकाउंटर के दौरान वहां पर मौजूद थे। क्या पहले अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और जवाबी कार्रवाई आप लोगों को करनी पड़ी? कितने लोग वहां पर छिपे हुए थे? ये सारी चीजें वहां पर मौजूद की नहीं थी। वहां पर हमारे जो थाना प्रभारी वगैरह हैं वो मौजूद थे और उन्हीं के साथ मुठभेड़ हुई है। उसके बाद सूचना के उपरांत पहुंचे हैं तो उनके द्वारा पहले फायर किया गया है, उसके आत्मरक्षार्थ फिर पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। रवि जी, किस किस को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन पकड़ा गया है, जरा उसके बारे में जानकारी देंगे? ये 2 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त है मोहम्मद सरफराज, सन ऑफ अब्दुल हमीद जी, और दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद तालिम, सन ऑफ अब्दुल हमीद जी। तो कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है या 2 लोगों को पकड़ा गया है? थैंक यू। रवि जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 2 लोगों को पकड़ा गया है कि 5 लोगों को पकड़ा गया है?
अभी हमारे पास 5 लोग कस्टडी में हैं। अब्दुल हामिद के बारे में रवि जी कोई जानकारी है कि कहां पर है वो इस वक्त? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रवि खोकर, सीओ बहराइच को आप सुन रहे थे। इस एनकाउंटर के दौरान वो भी इस ऑपरेशन में मौजूद थे और पुलिस थाने की जो पुलिस थी वो टीम वहां पर मौजूद थी। 5 लोगों को पकड़ा गया है। जो आरोपी है उनमें से 5 लोगों को पकड़ा गया है। सरफराज जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा गया है। मोहम्मद हामिद को अभी नहीं पकड़ा गया है, जो सरफराज का पिता है, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है। जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक सबसे बड़ा जो जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। लेकिन 5 लोग सरफराज के साथ जो इस मकान में छुपे हुए थे, पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग वहां छुपे हुए हैं और नेपाल भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने वहां दबिश दी। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो सामने से फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान सरफराज को गोली लगी है, हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरफराज के साथ 4 और आरोपियों को पकड़ा गया है, यानी कि कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लगातार 3 दिन से पुलिस की दबिश चल रही थी। आरोपी भागे हुए थे, उनके बारे में पुलिस जानकारी हासिल कर रही थी और अब बड़ी खबर यह है कि नेपाल बॉर्डर के पास से इन लोगों को पकड़ा गया है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। 6 नामजद जो आरोपी हैं उनमें से 5 आरोपियों के बारे में जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया है। इस दौरान जिन आरोपियों को गोली लगी है, जो घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, ये जानकारी हमको सीओ बहराइच जो हैं उन्होंने दी और नवभारत से उन्होंने कहा कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस ऑपरेशन में। पुलिस पिछले 3 दिनों से रात दिन एक किए हुए थे इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन आरोपियों को पकड़ने के लिए। इनके लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था इनको। और आखिरकार पुलिस को जब जानकारी मिली कि ये एक मकान में छुपे हुए हैं और नेपाल भागने की फिराक में हैं, पुलिस ने वहां दबिश दी। इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें सरेंडर करने के लिए जब कहा गया तो इन्होंने सामने से फायरिंग की। जो सीओ बता रहे हैं बहराइच के, उनके मुताबिक तो सामने से जब गोली चली तो पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें सरफराज घायल हुआ है। मुठभेड़ में कुल 2 आरोपी घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी है जो सीओ की तरफ से दी गई है। और उनमें से एक सरफराज है जो मुख्य आरोपियों में से एक है। सरफराज के पिता, सरफराज का भाई और सरफराज 3 मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि सरफराज के घर में ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। सरफराज के घर में ही असले थे, सरफराज के घर में ही पत्थर थे, सरफराज के घर से ही शीशे की बोतलें फेंकी जा रही थी, कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी यात्रा के दौरान। ये अभी तक की जो जानकारी है उसमें सबसे बड़ी जानकारी ये कि सरफराज हत्थे चढ़ गया है पुलिस के। सरफराज के साथ साथ 4 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और सरफराज को गोली लगी है और इसके साथ साथ एक और आरोपी को गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में कुल मिलाकर 2 अपराधी घायल हुए हैं, लेकिन 5 अपराधियों को पकड़ा गया है, 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, जो उस दिन जिस दिन यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई थी, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें शामिल होने का आरोप है जिन पर। उनमें से 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। मोहम्मद हामिद को अभी नहीं पकड़ा जा चुका है, जो जानकारी है पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन इस दौरान 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कुल मिलाकर 10 नामजद आरोपी हैं, उनमें से 5 आरोपी हाथ आ गए हैं पुलिस के। और उसमें सबसे बड़ा आरोपी सरफराज, जिसके ऊपर आरोप है कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसने गोली चलाई थी। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जरा ये जानकारी दीजिए, 5 आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है नवभारत को। अभी बात हो रही थी बहराइच सीओ से, रवि से, वो बता रहे हैं कि 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, 2 घायल हैं। और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए विद्या, इसमें नाम बताना बहुत जरूरी है। अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी है, उसके 2 बेटे सरफराज और फहीम वो भी इस मामले में शामिल थे। इसके अलावा साहिर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, ननकऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और मारिफ अली, ये 6 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 4 लोग अज्ञात थे। मतलब कुल मिलाकर 10 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में। 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए हैं, जिसमें से एक का नाम कंफर्म हुआ है, सरफराज, जो कि हमीद का बेटा है। संभावना इस बात की है कि हमीद और उसके दूसरे बेटे को भी दबोचा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस की पुष्टि होने का इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल पाई है कि हमीद, सरफराज और दूसरा बेटा फहीम, इनको भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा 2 आरोपी और हैं जिन्हें पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। नहर के पास, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है, वहां पर छिपे हुए थे
किसी के सहयोग से वो नेपाल भागने की फिराक में थे और लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर जो एसटीएफ और बहराइच पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, उसके चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे।